Hello, what's up guys, this is your host Shwesh and if you're one of those people who like the aquarium style of cabinets या फिर जिसको कहते हैं dual chamber design cabinets, then this video is definitely for you because NZXT जैसी ब्रांड ने finally अपना एक dual chamber design cabinet launch कर दिया है in the market and that is the H9 series। जी हाँ दोस्तों, the H9 is finally available and as you can see हमारे पास आज Elite as well as the Flow दोनों ही models available हैं। So, इस वीडियो में हम सारी बात करेंगे, we'll cover all the differences, we'll cover all the similarities and साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे which of these two is the ideal cabinet for your next build। So guys, वीडियो करेंगे शॉर्ट। सबसे पहले बात करेंगे the similarities between the two cabinets। तो सबसे पहले similarities की बात की जाए तो similarities मिलती है हमें इसके IO पैनल में which is actually the signature NZXT design, बहुत ही minimalist but एक substantially populated IO पैनल आपको मिल जाता है either in the Elite or as well as the Flow। यहाँ पे आपको एक पावर बटन, एक आपको USB 3.2 टाइप C कनेक्टर एंड साथ ही साथ आपको दो USB 3.2 टाइप A पोर्ट्स मिल जाते हैं along with a audio jack which is obviously a uni jack, so you can connect all your 3.5 mm audio devices easily to either of these cabinets। अब बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे स्टोरेज की, because storage is a vital part of any cabinet। तो यहाँ पे आपको 4 डेडिकेटेड 2.5 SSD के लिए माउंट्स मिल जाते हैं एंड साथ ही साथ 2 डेडिकेटेड आपको 3.5 इंच मैकेनिकल हार्ड ड्राइव्स के लिए माउंट मिल जाते हैं which ensures कि आप एक बार में that is simultaneously you can mount up to 6 storage devices easily in either of these cabinets, which I think is a very good number। आप कोई भी एक गेमिंग रिग बनाएं या फिर एक प्रोडक्टिविटी की तरफ इंक्लाइंड एक सिस्टम बनाएं, दोनों केसेस में 6 storage drives are I think a very good number। So guys, that is one thing that we are covering over here। साथ ही साथ यहाँ पे अगर कूलिंग सपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि अप टू 360 mm रेडिएटर का सपोर्ट मिल जाता है both in the Flow as well as the Elite edition of the H9। साथ ही साथ यहाँ पे अगर एयर कूलिंग की बात की जाए तो CPU एयर कूलिंग क्लियरेंस जो है यहाँ पे 160 mm की मिल जाती है which ensures कि आप जो बड़े से बड़े एयर कूलर्स हैं अवेलेबल इन द मार्केट they can fit easily in either of these cabinet including the latest launch of the NZXT T120 जो कि अपने आप में एक सिंगल टावर एयर कूलर है। सो आइदर वेज अगर आप लिक्विड कूल्ड बिल्ड बनाते हैं या एयर कूल्ड बिल्ड बनाते हैं, दोनों ही केसेस में H9 इज गोइंग टू बी एन आइडियल चॉइस। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं डिफरेंसेस की, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास दो कैबिनेट्स है, दैट इज द Elite एंड द Flow। सो सबसे पहले हम Flow से स्टार्ट करेंगे which I think is the much more affordable option between the two because Elite is a bit more expensive compared to the Flow। पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ, just like every other NZXT cabinet out there। So Flow में जैसा कि नाम में ही Flow है which is inclined more towards higher air flow, तो यहाँ पे आपको एक perforated mesh panel मिल जाता है on the top which obviously is absent in the Elite because Elite में आपको top में मिलता है एक full glass panel compared to the mesh one on the Flow। साथ ही साथ guys यहाँ पे जो massive difference आता है दोनों में वो आता है fans में, because if you look at the Flow, so out of the box यहाँ पे आपको 4 NZXT के F series के 120 mm fans मिल जाते हैं, 3 on the side and 1 at the back, but all the 4 fans are non-ARGB। But अगर हम Elite की बात करें so guys वैल्यू प्रोपोजिशन काफी ज्यादा बढ़ जाती है बिकॉज यहाँ पे जो एग्जॉस्ट फैन है 120 mm का दैट इज द NZXT F सीरीज नॉन ARGB फैन, बट जो साइड में 3 फैंस आपको मिल रहे हैं वो है NZXT के लेटेस्ट F सीरीज डुओ फैंस एंड ऑल 3 आर 120 mm। सो गाइज दैट्स अ ग्रेट वैल्यू प्रोपोजिशन बिकॉज दोनों ही कैबिनेट्स में आपको 10 फैन सपोर्ट है, तो 10 फैंस आर गोइंग टू बी एन एक्सपेंसिव थिंग टू बाय। सो 3 very competent, very nicely built ARGB fans आपको Elite में मिल जाते हैं which obviously are absent in the Flow। So guys, ये बहुत ही बड़ा major difference है, obviously क्योंकि ये Elite है तो Elite में आपको जो NZXT Hue controller होता है which supports 3 fan channels along with 6 ARGB NZXT cam adhering devices, वो आपको सपोर्ट मिल जाता है Elite में एंड दैट इज ऑब्वियसली एब्सेंट इन द Flow। सो गाइज, अगर अब बात कर लें कि कौन सा कैबिनेट आपके लिए बेटर होने वाला है, तो सबसे पहली बात, दोनों ही कैबिनेट्स बहुत ही कॉम्पिटेंट है। नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ अ बिल्ड यू आर मेकिंग, गेमिंग हो या प्रोडक्टिविटी हो, दोनों ही कैबिनेट्स आपको बहुत अच्छी तरह हेल्प करेंगे टू क्रिएट द परफेक्ट बिल्ड पॉसिबल। बट अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है एंड यू आर मे बी गोइंग फॉर एन एयर कूल्ड बिल्ड, तो डेफिनेटली Flow को आप कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर आप एक लिक्विड कूल्ड बिल्ड की ओर जा रहे हैं एंड यू वांट द बेस्ट थिंग अवेलेबल इन द मार्केट एंड कैम या फिर NZXT का जो इकोसिस्टम है वो आपकी काफी प्रेफरेंस है, यू आर हैविंग मल्टीपल NZXT डिवाइसेस, तो गोइंग फॉर द Elite is going to be a no-brainer। तो Elite is the choice in that case, otherwise Flow can be bought by any other person out there in the market। So guys, वीडियो को आई थिंक यहीं पे रैप अप करेंगे, यहीं पे खत्म करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज या आपको लगता है आई हैव मिस्ड आउट ऑन एनी पॉइंट्स रिलेटेड टू दीज प्रोडक्ट्स, देन मेक श्योर यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। I'll make sure कि I'll get back to you on time। So guys,
You guys were great. I'll see you guys in the next. Till the next time, take care of yourself and peace.